अलेक्जेंडर की सेना के सामने पोरस की सेना कहीं टिकती नहीं थी। वॉर का रिजल्ट क्या होगा पोरस जानते थे, लेकिन फिर भी तलवार उठाई, आखिरी दम तक युद्ध क्षेत्र में डटे रहे। It's a different matter that seeing his valor and anticipating the difficulties of maintaining an empire so far away from Greece, Greek invader Alexander accorded respect and dignity to the befallen king Porus as that of an equal standing, despite Porus's likely defeat. लेकिन यह भारतीय राजनीति में आज संभव नहीं है। The fate of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023 is pre-decided. Yet the 26-party alliance, India, shall sling it out in the parliament to salvage the honor and dignity of Aam Aadmi Party and its chief Arvind Kejriwal. The Delhi Amendment Bill 2023, which shall replace the popularly known Delhi Ordinance promulgated on 19th of May 2023 by the Presidential Order amending the Government Capital Territory of Delhi Act 1991, shall see its passage through both the houses of the Parliament as and when presented by the Modi government. Let's do the maths. With 334 Lok Sabha MPs out of the effective strength of 538, the NDA shall easily sail the Delhi Amendment Bill through the Lok Sabha. विपक्षी दलों को राज्यसभा से बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन राज्यसभा का गणित भी एनडीए के हक में ही जाता है। राज्यसभा के दलों के संख्या से सब कुछ साफ हो जाता है। बिल के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के 92 सांसद, AIADMK के 4 सांसद, एनडीए के अन्य एलाइज के 9 सांसद, वाईएसआर कांग्रेस के 9 सांसद जिन्होंने अपना समर्थन पहले से घोषित कर दिया है, और बीजेडी जिनके 9 सांसद हैं, संभावित तौर पर वो भी एनडीए के साथ ही वोट करते दिखाई देंगे। इसके अलावा 5 नॉमिनेटेड सदस्य हैं और 2 इंडिपेंडेंट, यानी कि अगर हम बीजेडी के 9 सांसदों को छोड़ भी दें तब भी 121 सांसदों का समर्थन हासिल है एनडीए को, और अगर आप बीजेडी को इसमें जोड़ दें तो 130 सांसदों का समर्थन बीजेपी के पास है। 26 दलों वाली इंडिया के पास कांग्रेस के 30 सांसद हैं, टीएमसी के 13, डीएमके के 10, आम आदमी पार्टी के 9, बीआरएस जिसने पहले से ही समर्थन घोषित कर रखा है अरविंद केजरीवाल के संदर्भ में, उनके 7 सांसदों को अगर जोड़ दिया जाए तो 39 ऐसे और सांसद हैं जो दिल्ली अमेंडमेंट बिल के खिलाफ वोट करना चाहते हैं, यानी कुल मिलाकर 108, यानी कि यहां पर हार सुनिश्चित है। लेकिन अब इसमें भी पेच है। 2 सांसद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और कांग्रेस की रजानी पाटिल सस्पेंडेड हैं, यानी कि इफेक्टिव स्ट्रेंथ होगी 106। तो हुई ना इंडिया और आप की हार पहले से ही तय। इसके साथ ही संसद में घमासान भी होगा। हारे नेता सर झुकाकर नहीं बल्कि अपने छल्ली सीने को लेकर जनता की अदालत और सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर दुहाई देंगे। बट अनलाइक पोरस, the NDA would not accord respect and dignity to the befallen opposition. So why has Aam Aadmi Party and TMC virtually forced the 26-party alliance to face the indignation and humiliation for a pre-decided lost battle? The reason is not just political one-upmanship between Aam Aadmi Party and the BJP, nor is it to salvage Aam Aadmi Party's lost image in front of its voters, who have democratically elected their government for the second time. It is for the express purpose to show a mirror to the dominant majoritarian party ruling the country, that is the BJP, that the BJP cannot abrogate all powers in its fist and trample over the laid principles of parliamentary democracy. संवैधानिक परंपराओं की धज्जियां कैसे उड़ाई गई, कैसे दिल्ली पर अपने कब्जे के लिए बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने दिल्ली की जनता के मैंडेट को हवा में उड़ा दिया, and how Modi government ensured that not a leaf moves within the national capital territory, that is Delhi, without its express permission
is a classic example of the axiom, हम न खेलेंगे तो कोई नहीं खेलेगा। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे, 90 के दशक में भारतीय जनता पार्टी का यह सबसे बड़ा वादा और नारा था दिल्ली की जनता के सामने। आज इस वायदे पर दिल्ली का कोई भी बीजेपी का नेता मुंह खोलने को तैयार नहीं है। The entire Punjabi lobby of Bharatiya Janata Party believed this is the only way to secure Delhi in BJP's kitty. एक सार्थक और कुशल नेतृत्व ने 90 के दशक में दिल्ली को बीजेपी की झोली में डाल दिया, लेकिन 80 रुपए किलो प्याज की बढ़ती हुई कीमत और महंगाई, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बिखराव की वजह से उस वक्त की दिल्ली के मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज को हार झेलनी पड़ी। उसके बाद 15 साल की शीला दीक्षित की कांग्रेस की सरकार ने रही सही कसर भारतीय जनता पार्टी की पूरी कर दी, यानी कि अरमानों पर पानी फेर दिया। लेकिन 2015 में अन्ना आंदोलन से जन्मी आम आदमी पार्टी ने 70 विधानसभा की सीटों में से 67 सीटों को जीतकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को झाड़ू से साफ कर दिया। लिहाजा केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी का नेतृत्व इसके फाख्ते हो गए। 2014 में मोदी के नेतृत्व में जनता का दिल जीतकर बीजेपी ने लोकसभा, फिर महाराष्ट्र और हरियाणा में बम्पर मार्जिन से अपनी सरकार बनाई थी। और वो भारतीय जनता पार्टी 70 सीटों की विधानसभा में सिर्फ 3 पर सिमट कर रह गई। This was such a great blow to brand Modi that nobody within the BJP nor even the upper echelons of BJP could tolerate. So in 2015, via Home Minister order, the Government of National Capital Territory of Delhi Act 1991 was modified. Apart from law and order, which is Delhi Police, land, that is DDA, and public order, the LG was now empowered to become the final authority of civil services as well. This virtually made the elected government a lame duck, granting all powers to the central government vis-a-vis this Home Ministry order. Trying foul, the popularly elected Arvind Kejriwal government approached the courts. The Supreme Court in 2018 clearly set aside the Home Ministry's notification and restored the GNCT Act 1991 in letter and spirit. After the Delhi High Court gave an order which had supported the central diktat. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी, and in 2019 a 2-judge Supreme Court bench passed a split verdict on this matter. So it was referred to a higher 3-judge bench, and on 11th of May 2023, the bench headed by Chief Justice D.Y. Chandrachud, along with his brother judges, restored the control of civil services, which means appointment, dismissal, transfer, posting, recruitment of all officials working for the Delhi government with the Council of Ministers of National Capital Territory. The reasoning was based on upholding the parliamentary process of triple chain command, which means bureaucrats यानी कि नौकरशाही की कमान चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथों में रहेगी। चुने हुए प्रतिनिधि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जवाबदेही विधानसभा या यूं कहें कि लोकसभा के प्रति रहती है, और कुल मिलाकर लोकसभा या विधानसभा की जिम्मेदारी प्रदेश या देश की जनता के प्रति रहती है। यह पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक मूलभूत आधार है। आम आदमी पार्टी की यह जीत बहुत बड़ी थी, क्योंकि 2015 से 2023 तक उपराज्यपाल के जरिए दिल्ली प्रशासन पर केंद्र का लगभग पूरा कब्जा था और स्पष्ट दिखाई भी देता था। इस बीच बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार से लोहा लेती आम आदमी पार्टी ने 2020 में 70 सीटों में से 62 पर जीत हासिल कर भारतीय जनता पार्टी की नाक एक बार फिर जमीन पर रगड़ी थी। ऐसे में इस करारी शिकस्त को भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। But as they say, some cheers are very short-lived as the flares of a flame. On 19th of May 2023, merely 8 days after the landmark Supreme Court verdict on G&DT Act, the central government passed the Delhi Ordinance, effectively nullifying the May 11th judgment of the Supreme Court. The Delhi Ordinance was promulgated on 19th May, being a Friday, so that the matter could not be challenged in any of the courts, and all matters with the state government
could be transferred in the hands of LG, which is the central government. The ordinance provided for the LG to be the sole authority to make rules on the power, duties, and functions of officers or other employees appointed and posted, and the qualification of candidates for appointment and the manner of selection of appointments. The ordinance also created National Capital Civil Service Authority, NCCS, which was to be chaired by the Chief Minister with the GNCT Secretary and Principal Home Secretary as members. The decision was to be taken by a majority vote, and in case of any difference of opinion with the LG, the view of the LG shall prevail. So now the LG was not supposed to function on the aid and advice of the Council of Ministers in all matters other than land, police, and public order, but now he had a comprehensive control over entire functioning of the Delhi government, which in effect meant that the central government's agenda would be pushed through, all transfers will be decided, all postings will be decided, and every action of the government officials would be only at the instruction and insistence of the central government. This was done vis-a-vis a provision within the 1991 Act, which is the most interesting part, that the modification was done and this provision 3 was installed. Effectively, what did this mean? This meant that the Delhi Assembly, which has been elected by the Delhi populace, is a lame duck assembly, has no powers whatsoever, and the government, which has promised so many assurances to the people, will never be able to fulfill it. क्योंकि जब नौकरशाही सरकार के इशारों पर नहीं चलेगी तो लिए गए फैसलों का कार्यान्वयन कैसे होगा? ऐसे में दिल्ली में सरकार किसकी भी हो, क्या फर्क पड़ता है? होगा तो वही जो केंद्र सरकार चाहेगी। तो यही वो गेम है जो भारतीय जनता पार्टी ने खेला। इसमें विरोधी यानी कि आम आदमी पार्टी बेमौत मरी, और इस ऑर्डिनेंस के जरिए सरकार ने संसदीय लोकतंत्र की ट्रिपल चेन ऑफ कमांड को भी पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया। गौरतलब है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सरकारी वकील ने जो बातें कही वो अपने आप में नोट करने वाली बात है। सरकारी वकील ने कहा कि चुनी हुई सरकार इनसेंसिटिव और एरोगेंट तरीके से काम कर रही है। ऐसे एक्शंस से दुनिया में भारत की छवि खराब हो रही है, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और कई अंतरराष्ट्रीय समारोह दिल्ली में आयोजित किए जाते हैं। राष्ट्रपति को यह ऑर्डिनेंस इसलिए जारी करना पड़ा क्योंकि राज्य में एडमिनिस्ट्रेटिव केओस है और एनार्की फैल रही है। एनार्की, अराजकता। आप जानते हैं शब्द किसके हैं? भारतीय जनता पार्टी के। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक ने दिल्ली की सरकार को एक एनार्किस्ट सरकार करार दिया है, आम आदमी पार्टी की सरकार। लिहाजा राज्य सरकार को रास्ते पर लाने के लिए केंद्र सरकार को एक व्यवस्थित प्रणाली बनानी पड़ी, और इसी वजह से दिल्ली ऑर्डिनेंस सरकार लेकर आई। कई तरह के तर्क दिए गए ऑर्डिनेंस के समर्थन में और उसके खिलाफ में भी। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को यह मामला रेफर कर दिया है। जाहिर है दिल्ली ऑर्डिनेंस पर एक बार फिर केंद्र सरकार की फजीयत होनी तय है, क्योंकि पार्लियामेंट्री प्रोसेसेस, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और स्पिरिट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को पूरे तरीके से ध्वस्त करता है यह ऑर्डिनेंस। और जब तक यह ऑर्डिनेंस है तब तक सरकार के ऊपर एक संशय भी रहेगा, केंद्र सरकार के ऊपर, कि ऑर्डिनेंस के जरिए दिल्ली सरकार पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की सरकार ने कैबिनेट में दिल्ली गवर्नमेंट अमेंडमेंट बिल 2023 को प्रस्तुत कर उसे पास कराया, ताकि दिल्ली पर मोदी सरकार का फरमान ही चलता रहे। As I mentioned in the beginning, this is a losing battle in the parliament. The Supreme Court Constitutional Bench would also find it very difficult once the 2003 amendment has been passed by the parliament. And the amendment would pertain to Government Capital Territory of Delhi Act 1991, superseding any other order. यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के ऑर्डर को भी
सुपरसीड करता हुआ ये पार्लियामेंट का एक डिक्टेट होगा। इसकी एक प्रेसिडेंट आज हमारे सामने है, जो कि राजीव गांधी के सरकार के समय हुई थी। ऐसे में आम आदमी पार्टी अपनी लड़ाई लड़ता रहेगा और उसके सामने एक बड़ी चुनौती होगी 2025 में यह साबित करने की कि दिल्ली की सरकार बनाने के साथ ही जो वायदे आम आदमी पार्टी ने जनता के साथ किए थे, उन वायदे को आम आदमी पार्टी पूरा कर पा रही है या नहीं। और इसके साथ साथ 2024 के लोकसभा के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को आसानी से घेर सकेगी। लेकिन इसमें सवाल उठते हैं, कुछ महत्वपूर्ण सवाल। इज दिस अ करेक्ट पार्लियामेंट्री प्रोटोकॉल? नो, इट इज नॉट। क्या दिल्ली के संबंध में केंद्र सरकार की यह राजनीति से प्रेरित कदम को लोकतंत्र को चुनौती नहीं कहेंगे? हां, बिल्कुल कहेंगे। क्या देश में ऐसे राजनीतिक दांवपेच से लोकतंत्र का गला नहीं घोटा जा रहा? इसमें किसी को संदेह नहीं है कि गला घोटा जा रहा है। लेकिन क्या किया जाए? यही हमारे देश की कई मौके पर त्रासदी भी है, व्यथा भी है कि लूपहोल्स निकालकर राजनीतिक दल अपना उल्लू जब चाहे तब सीधा कर